السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں ایک ایسے شخص سے ملواتا ہوں جو اپنے باپ کے لیے تو گالی سن سکتا ہے، جو اپنے لیے تو گالی سن سکتا ہے، مگر علماء دیوبند کی تھوڑی سی بھی برائی نہیں سن سکتا۔ حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، وہ ان کی سچائی ہے، وہ ان کی حقیقت ہے۔ جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ہم اس کو بتاتے ہیں تو وہ ان کو برا لگتا ہے۔ سمجھے مسلمانوں؟ اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی، آپس میں توڑ پیدا مت کرو، آپس میں نا اتفاقی مت پیدا کرو۔ ارے بھائی، نا اتفاقی ہم نے پیدا کی کہ تم نے پیدا کی؟ ہمارے نبی کی شان میں توہین تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ ارے جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، جو ہمارے نبی کی شان و عظمت کو گھٹاتا ہے، اس نے نا اتفاقی پیدا کی یا انہوں نے نا اتفاقی پیدا کی جو اپنے نبی کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں؟ کیا یار، کہاں جو ہے کچھ لوگوں کی عقل گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، یا عقل بیچ کے کھا لی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جو رسول اللہ کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں تم فساد کر رہے ہو، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اتفاق کرتے ہیں، یہ اتحاد والے ہیں۔ ارے شرم نہیں آتی الٹی باتیں کرتے ہوئے؟ خیر، اسی طرح کا ایک یہ بندہ ہے کہ اگر اس کے باپ کو گالی بکو، اس کو گالی بکو، تو یہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ سمجھے مسلمانوں؟ اور اگر علماء دیوبند کو کچھ کہہ دو اور بتا دو کہ دیکھو فلاں جو ہے کتاب میں ایسا لکھا ہے، وہ ایسا لکھا ہے، اور علماء دیوبندی جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہیں، علماء دیوبند جو دیوبند کے چار اکابر پکے کافر، تھانوی نے نوتبیہ میٹھوی گنگوہی، تو ان کو کافر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال بس میں وہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، جب عقل ہی چھن جاتی ہے تو پھر سمجھ میں کچھ آتا جاتا نہیں۔ خیر، آگے کی پوری آڈیو سنیں، پوری گفتگو سنیں۔ ہلو، ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اقرار قادری بول رہا ہوں۔ جی حضرت، آپ نور حسن بھائی بول رہے ہو کیا؟ ہاں نور حسن بول رہا ہوں۔ آپ ان سے بات کرو، جیسے میں نے انہیں بتائی ہیں، جیسے ان کی جو کتابیں ہیں تقویۃ الایمان۔ ابھی تھوڑا میں کسی کام میں تھا حضرت، اقرار بھائی جی، بعد میں بات کرتا ہوں ذرا۔ کتنے 5 منٹ بات کر لو بس۔ ہاں، لو بات کرو۔ اللہ بات تو کرو پہلے۔ ہلو، ہاں جی ہلو، السلام علیکم۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ رخ نام ہے۔ شاہ رخ بھائی، کہاں سے ہیں؟ یہیں سے ہوں، ٹیو سے۔ جی ٹیو سے ہوں، سمجھا نہیں، یہیں سے ہوں، گاؤں سے۔ مطلب کون سے گاؤں سے؟ جو یہ جن سے بات کر رہے ہیں انہیں کے گاؤں سے ہوں۔ اچھا، میں مطلب جگہ کا نام بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹیو ٹیو۔ ٹیو، اچھا، کون سی جگہ پڑے گا یہ؟ یو پی آگرہ ضلع میں۔ اچھا، آگرہ ضلع میں، یو پی میں۔ ہاں، اچھا اچھا، جی فرمائیے، کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ مجھے کیا پتا انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اللہ والے سے۔ پھر بھی اس کی پہچان، اس کی پہچان اس کی پہچان کیا ہے؟ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ میں نہ اہل حدیث نہ دیوبندی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، چلیے بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ آپ کی بات سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو حضور سے محبت بھی کرتے ہوں گے؟ بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ اپنے گھر والوں سے اور اپنے بھائی بہن سے اور اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی بندہ آئے آپ کے سامنے اور آپ کے والدین کو گالی بکنے لگے، کیا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ؟ گلے سے لگائیں گے، ڈانٹ ماریں گے؟ نہیں، گلی سے لائیں گے۔ وہ آپ کے باپ کو گالی بک رہا ہے
हाँ, और आप उसको गले से लगाएंगे, यानी आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं है। नहीं, मोहब्बत है, उसे समझाएंगे कि ऐसे गाली देना अच्छी बात थोड़ी ना है। आपने गले से लगाने की बात कही है ना। हाँ, गले से लगा के समझाएंगे, क्योंकि ऐसे उसे मारने लग जाएंगे तो वो तो कभी समझ नहीं पाएगा फिर। अच्छा अच्छा, ये तहम्मुल और ये मोहब्बत और ये इत्तेहाद कब तक कायम रहेगा आपके अंदर? जब तक जिंदा है, जब तक। माशाअल्लाह, सुनकर बड़ी खुशी हुई आपसे कि इतने सब्र वाले हैं आप कि अगर आपके माँ बाप को कोई गाली बके तो आप उसको सीने से लगा के समझाते हैं। माशाअल्लाह, सुनकर अच्छा लगा। क्योंकि हमारे नबी ने जब बुढ़िया से इतना कूड़ा सहा लिया तो हम मतलब उसकी गाली नहीं सह सकते। जी 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 जी। मगर ये सिर्फ आप नबी के लिए कह रहे हैं, अगर अभी आपसे थोड़ी देर में कोई बात हो तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मानेंगे क्यों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हाफिज हैं, मौलाना हैं, क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ, इंसान हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। तो आप अपने वालिदैन को कभी कभी झड़क भी देते हैं या नहीं? आप अपने वालिदैन को कभी कभी झड़क भी देते हैं या नहीं? ना, कभी ना, कभी नहीं, कभी नहीं। माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अपने माँ बाप को उफ ना कहो, उन्हें तकलीफ ना दो। समझे? माँ बाप नाराज हो गए तो जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे अच्छे अमाल, ये सब एक तरफ रखे रह जाएंगे, है ना? माँ बाप अगर नाराज हैं तो हम कितने ही नेक हैं, परहेजगार हैं, कितने ही कुछ हैं, जन्नत में नहीं जाएंगे क्योंकि वो नाराज हैं हमसे। हुजूर ने एक तरफ तो ये फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ ना कहो, उन्हें तकलीफ ना दो। दूसरी तरफ हुजूर ने ये फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हत्ता कि अपने बीवी बच्चे, अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक वो मुझसे मोहब्बत न करे। क्या नहीं है? कामिल मोमिन, कामिल ईमान वाला। अच्छा जी। तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, बताएंगे? अभी इसमें इतना तो पता नहीं कितनी करता हूँ, करता हूँ। अच्छा, अपने वालिदैन से ज्यादा करते हैं, वालिदैन से कम करते हैं? वालिदैन से, हाँ, दोनों को बराबर ही करता हूँ। दोनों को बराबर करते हैं। मगर हुजूर की तो हदीस है कि जब तक कि कोई कामिल ईमान वाला नहीं है, कामिल मोमिन नहीं है, जब तक कि वो मुझसे अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हत्ता के सारी चीजों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे। और आप कह रहे हो कि मैं अपने बाप से और जो है हुजूर से, दोनों से बराबर करता हूँ। दोनों से बराबर करता हूँ। तो फिर तो आप हुजूर की हदीस पर जो है नहीं खरे उतरे। क्यों नहीं खरे उतरे? आप दोनों से बराबर करते हो ना। आपके वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या हुजूर के बराबर है? हुजूर के बराबर थोड़ी आपके वालिदैन का मकाम। दिया तो जन्म उन्होंने ही है, किसी और ने थोड़ी ना दे दिया। जन्म देना अलग की बात है, जन्म देना अलग की बात है। क्यों 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 मतलब अलग की बात है? अरे भाई, जन्म दे दिया तो क्या रसूलुल्लाह से आगे बढ़ गए? रसूलुल्लाह तो खुद फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप, भाई बहन। कौन सी किताब में है? किताब में हदीस है जनाब, हदीस। कौन सी हदीस में है? मैं तो ये भी नहीं मालूम। नहीं, मैं कितने पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, जब तो पूछ रहा हूँ। तो अनपढ़ हो भाई तो ऐसे जाहिलों के साथ, जमात वालों के साथ मत रहो जो तुम्हारा ईमान लूट ले, ईमान बर्बाद कर दे नमाज के नाम पर। और ऐसे अहले हदीसों, अहले हदीसों के साथ मत रहो जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हो माज़अल्लाह कि हुजूर ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला। समझे जनाब? आप धोखे में हो बदबख्तों के साथ। अच्छा, फिर रहो तो किसके साथ रहो? अहले सुन्नत वल जमात, जिसकी पहचान इस दौर में सुन्नी, हनफी, बरेलवी कहा जाता है। अच्छा, जी हाँ, वो तो बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं। वो तो गाँव में झगड़ा करवा देते हैं। नहीं, क्यों? किसने झगड़ा कराया बताइए? तो मैं मुझे दे दी ताबीज, मेरी दुकान बंदवा दी, उसकी दुकान चलवा दी, ये हो ही रहा है। ये देवबंदी करते हैं, ये ताबीज गंडे लड़ाने वाले काम ये सब देवबंदर करते हैं। अच्छा, ये देवबंदी करते हैं। जी हाँ। कहीं दिखाओगे मुझे? अरे क्यों? मैं तुम्हें देवबंदरों को ताबीज गंडा कराते दिखलाऊं, करते दिखलाऊं? हाँ, तो मुझे ये करते दिखलाओ ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मौलवी अशरफ थानवी का जो तर्जमा वाला कुरान है उसको उठाओ, उसमें भी जो है ताबीज मतलब उसमें दिए गए हैं। क्या दिए गए? समझे जनाब?
हमारी लाइन में हमारे यहाँ तो सब बरेली करते हैं। अरे यार अभी तो तुम देवबंदी भी नहीं थे और वहाबी भी नहीं थे, न मैं तो कोई अभी भी नहीं एकदम हूँ से देवबंदी और वहाबी कैसे बन गए तुम? न मैं तो कोई भी नहीं हूँ। मैं तो पहले बोल तो चुका फिर हूँ, लावारिस नबी हो को ना? मानने वाला हूँ, नबी को मानने वाला हूँ, ना 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 आप नबी लावारिस को हो, मानने वाला, ओनली नबी को मानने वाला। ना मैं तो देवबंदी के तभी तो लावारिस हो, तभी तो लावारिस हो, क्योंकि तुम्हारा इस टाइम पे कोई वारिस नहीं है। हाँ तो लावारिस मान लो, हाँ लावारिस ही सही हूँ। बहरहाल आप धोखे में हो, अनजाने में हो, रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ हो, और अच्छा। आपने ये सब में बड़ा झूठ बोला कि तुम किसी के साथ नहीं हो, तुम्हारी कोई जमात नहीं है, तुम किसी जमात के साथ नहीं हो, ये सब में बड़ा झूठ है आपका। अच्छा, जी हाँ झूठ से दुनिया टिकी है। बताओ। झूठ से दुनिया टिकी है, और क्या है? इसीलिए झूठ बोलते हो। हम्म। वाह क्या ईमान है तुम्हारा। ईमान तो आजकल देख लो मुसलमानों, ये है इनका ईमान कि झूठ से दुनिया टिकी है। माशाअल्लाह, झूठ से टिके बैठे हैं, एक दूसरे को मुस्लिम काट ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे जनाब तुमने कहा कि मैं अपने बाप के बराबर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तुम कह रहे थे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक जगह हो गया बहुत मोहब्बत, एक जगह हो गया कि तुम अपने बाप से अपने बाप के और रसूलुल्लाह के दोनों के लिए बराबर जो है मोहब्बत रखते हो। मुझे तुम इन बातों में ना फंसाने की कोशिश करो, मैं इन बातों में ना फंसने वाला। अरे फसान तो तुम तो वैसे ही लावारिस हो, तुम मानोगे थोड़ी हमारी कोई। चार पेज चलने वाले, ये 4 पेज नाकामयाब है। अरे जनाब 4 पेज तो तुम हो, तुम तो कोई 1 पेज भी नहीं हो, आधा पेज भी नहीं हो, तुम वहाबी देवबंदी के साथ धोखे में हो गए हो जनाब। तुम कहाँ से हो पहले ये बताओ मुझे। क्यों क्या करोगे, मैं कहाँ से हूँ? मुझे पता भी तो करना चाहिए, थोड़ा बात तो तभी तो करूंगा। क्यों 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 मुझे जान से मारोगे? ना मैं भाई जान से किसी को नहीं मार सकता। फिर किस लिए पूछ रहे हो? ऐसे फोन पे बात करो ना। नहीं मैं थोड़ा सा पता तो लग जाए मुझे। अच्छा ये नंबर किसका ये बताओ पहले। मगर हाँ ये तो इनका इकरार भाई का नंबर है, तुम्हारा नंबर क्या जरा बताना। मेरा नंबर नहीं है, मैं फोन नहीं बताओ 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 नंबर बताओ। नंबर बताओ। 8847। एक मिनट हाँ बोलो। 8847 8847 एक मिनट 52 8847 और 52 52 9583 9583 जी। एक देखो कॉल आगा तुम्हारे पास। तो आँखों से वो जो आँखों से एक पल न ओझल हुए, लापता हो गए देखते। हेलो। हाँ जनाब जी। एक फोन जो है ना म्यूट कर दो। एक फोन म्यूट कर दो। काट दिया। अच्छा काट दिया। काट दिया। अच्छा जनाब तो ये आपका नंबर है? जी मेरा। ठीक है तो उनका वाला फोन काट दिया ना आपने? काट दिया। अच्छा कोई बात नहीं है। तो अभी आपका नंबर है और आप मेरा एड्रेस पूछ रहे थे ना, अब लो एड्रेस। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से हूँ। रामपुर देखा है ना आपने? नहीं। जो बरेली शरीफ और मुरादाबाद के बीच में, दोनों के बीच में जो रामपुर है, मैं वहाँ से हूँ। मैंने नहीं देखा। घर तक का कहो तो मैं घर तक का पता दे दूं? ना ना अब मुझे एक बात बताओ, पीरों को मानना तो अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा क्यों नहीं है बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं मसले के आला हजरत को फॉलो करता हूँ, समझे? जो आला हजरत का रास्ता है मैं उस पर चलता हूँ। जो आला हजरत और जो थानवी ने बताया है मैं उस पर नहीं चलता, जो गंगोही ने बताया मैं उस पर नहीं चलता, समझे? जो कासिम ननौतवी ने बताया उस पर नहीं चलता। इन देवबंदरों का अकीदा ये है माज़अल्लाह, आप उनसे वाकिफ नहीं हो। इन देवबंदरों का अकीदा ये है माज़अल्लाह कि नमाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। क्या आपका भी यही अकीदा है? नहीं समझ में आई बात? मेरा नहीं। नहीं ना? तो जिसका इस तरह का अकीदा हो मुसलमान है या काफिर है बोलो? जिसका इस तरह का अकीदा हो मुसलमान है या काफिर है? ये बात मैंने किसी मुझे सुनी नहीं, आपकी पहले। फिर वही बात तुमने नहीं सुनी, इसकी क्या जो है कोई वो है, कोई वैल्यू है इस बात की? तुमने नहीं सुना तो कोई किसी ने नहीं सुना या उन्होंने ये बात नहीं कही? अच्छा ये बताइए, आपने रामपुर नहीं देखा, रामपुर नहीं सुना, तो क्या रामपुर है नहीं क्या? रामपुर है। बरेली शरीफ तुमने नहीं देखी है, नहीं गए हो, तो क्या बरेली है नहीं क्या? और मैंने भी मुरादाबाद अगर नहीं गए हो, दिल्ली नहीं गए हो, बॉम्बे नहीं गए हो, तो क्या है नहीं क्या? तुमने ये कहा कि तावीज गंदे वो नहीं कर, वो कर। फिर वही बात, ये तावीज उवीज की बात छोड़ो, मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था कि दुश्मनाने रसूलों के साथ हो तुम लोग, मैं वही साबित करने जा रहा हूँ, वही दिखाऊंगा आपको, वही बताऊंगा, टेंशन मत लो। मुझे यही तो बताओ। हाँ
تو बताओ ना मुझे तुम जो हो वो देवबंदी और वहाबियों के साथ या कादियानियों के साथ या फिर सुलह कुल्लियों के साथ या फिर मिनहाजियों के साथ, समझे? हाँ, तुम धोखे में हो, अनजाने में हो, नावाकिफ हो, बेखबर हो। चलो मैं अनजाने में, ये सब गलत है, कहने का मतलब ये है 9-10 नाम गिनाए वो। तुम अब ये बता दो सच सच, देखो सुनो पहले मेरी बात। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो दुनियावी ताल्लुक से हो चाहे दीनी ताल्लुक से, जो किसी न किसी तबके से ताल्लुक ना रखता हो। अगर दुनियावी मामला है तो किसी न किसी जो है पार्टी से, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ये जो मायावती वाली है, क्या बोलते हैं इसको, भाजपा, मतलब कोई ना कोई जो है तबका उससे जुड़ा हुआ जरूर है, वो किसी न किसी तबके से जुड़ा हुआ जरूर है। अच्छा, दुनियावी मामले में ले लीजिए तो ये है, और अगर दीनी मामले में ले लीजिए तो अहले हदीस मिलेंगे, कादियानी मिलेंगे, देवबंदी मिलेंगे, है ना, शिया खारजी मिलेंगे, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात मोमिन मुसलमान बरेलवी मिलेंगे। तो बंदा किसी न किसी से जरूर टच रहता है। अब सही कौन सा है आप ये बताओ मुझे। अहले सुन्नत वल जमात, जिसकी पहचान बरेली शरीफ के नाम से होती है इस दौर में हिंदुस्तान में खास तौर से, बरेली शरीफ से पहचान होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं वो हक जमात जो जन्नती हैं। हाँ सही फरमाया, जन्नती हो आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये 9 है जो ये सब गलत, मतलब 2 सखी हैं, 72 जो 2 सखी हैं यार, 72। मेरे आका ने 72 को बताया, 9 कहाँ से आ गए? मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, उनमें एक हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह उसकी पहचान क्या है, जो हक पर है पहचानेंगे कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। अच्छा, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। समझे जनाब? तो अब आज मुझे ये बता दीजिए कि क्या किसी सहाबी ने ये कहा माज़अल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल गधे बैल के ख्याल से बुरा है, बदतर है माज़अल्लाह? अब मुझे किसी फोकस के अनुसार दिखाओ कि ये बात ये, तुम अपने किसी देवबंदी को लाइन पे लो, तुम अपने किसी आलिम को लाइन पे लो जिसे तुम मानते हो। न मैं देवबंदी को ले रहा हूँ, न मैं बरेलवी को ले रहा हूँ, न अहले हदीस को ले रहा हूँ, मैं खुद। तो फिर बकवास करना बंद करो, मुजोरी मत किया करो। मुजोरी है ये? मुजोरी कैसे है भाई? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जब आपको मालूम नहीं है ना, अभी जैसे जब आपको मालूम नहीं है तो आप मालूम कर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो किसी मुस्लिम से बाजी करने का तरीका नहीं, ये तो हमारी नबी ने बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। तुमने ये कहा था, सुनिए, लाना ही नहीं है। तुमने ये कहा था कि अगर कोई मेरे माँ बाप को गाली बकेगा तो मुझे सीने से लगाऊंगा। लगाओ ना मेरी बातों को सीने से। तो बातों को सीने से लगाओ, पर तुमको भी तो बताओ। मुझे भी सीने से लगाओ। हाँ बिल्कुल। अभी से गुस्से में आने लगे हो? मैं तो नहीं आया, मैंने तो आपको और समझा रहा हूँ। ना ये अरे नहीं, सीने से लगा। मुझे कौन सी बात समझा दी? मुझे एक बात समझाओ। यही तो समझा रहा हूँ कि हमारे नबी ने पहले तो किसी को गाली या किसी बदतमीजी या किसी, मैंने आपको कौन सी गाली बकी है जरा बताइए। मैं तो अपने नबी की शान व अज़मत के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। मेरे नबी का, एक मिनट खामोश रहिए। ठीक है बोलिए। मेरे नबी का कौन सा वो सहाबी है जिसने ये कहा हो माज़अल्लाह के हुजूर ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मलने वाला हूँ? बताइए किसी एक सहाबी का नाम। किसका? तुम तो अल्लाह वाले रसूल वाले थे ना। अरे पहले मुझे तो एक बात बता दो, तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला अल्लाह रसूल की तारीफ करेगा कि तौहीन करेगा? ये बताइए आप। अरे मैं न तारीफ करता हूँ अभी न तौहीन। पहले मेरी बात तो समझो। पहले मेरी बात को आप समझो, मेरी बात को आप समझो। नहीं तो ये 72 फिरके बिल्कुल बेकार है। नहीं, हाँ बिल्कुल बेकार, मेरे नबी ने फरमा दिया बिल्कुल बेकार। तुम्हारा ईमान नहीं है हदीस पे? अच्छा, तुम्हारा ईमान नहीं है हदीस पे? सिर्फ ओनली एक बेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, ये सब 2 जगह में जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे? तुम फैसला करो। बताओ। नहीं पोजीशन तुम बताओ। हाँ बिल्कुल जहन्नम में जाएंगे, मेरे आका ने फरमा दिया, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसके बाद 2 जगह में सिर्फ ओनली 1%, ओनली एक हक पर एक जन्नती। ये मेरे आका का फरमान है। तो अगर कोई हाँ किसी वहाबी देवबंदी को लाओ लाइन पे, अगर वो ये कहते हैं कि हमारी जमात हक पर है, मैं उसको बातिल साबित करूंगा। पहले मुझे ही खाली आप एक बात तो समझा दीजिए, मुझे ही समझा दीजिए पहले। तुम देखो एक मिनट। अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, समझे जनाब। जब अक्ल छीन जाती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता जाता, समझे जनाब। मुझे एक बात तो बता दो, और जब तक वहाबी देवबंदी कोई बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास अकल रहे। इनकी अकल चली गई है। हाँ बिल्कुल कोई शक नहीं है। पर मुझे तो एक बात समझा दो। हाँ वो लोग बोलते हैं पर समझते नहीं। सुना है जलेसर, सुना है जलेसर, सुना है जलेसर।
जलेश्वर। जलेसर सुना है आपने? सिटी बोलिए बोलिए। जलेसर शहर सुना है? नहीं सुना है? अरे बोलिए ना, नहीं सुना है। नहीं सुना है? वहाँ एक दरगाह है, अच्छा मियाँ बाबा। अच्छा, तो तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ। मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है क्या है। ऐसे तो बहुत सारे ढोंगी बाबा फिर रहे हैं। अच्छा, हमारे बुजुर्ग उनको, हमारे जो उलामा हैं, पीर को पीर मानते हैं, और जो पीर सही से नहीं होता, जो तरीकत वाला नहीं होता, उसको पैर कहते हैं। ये पीर नहीं पैर हैं। जो लूटा खसोटी वाले हैं, जो लोगों की जेबें काटने वाले हैं, समझे, हम खुद ऐसे लोगों का रद्द करते हैं, समझे, हम आला हजरत वाले हैं। अच्छा, तो फिर मुझे तुम हमें पहचाने नहीं हो। पहले आला हजरत को पढ़ो, पहले आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत वालों की सोबत में रहो। हम पहले मुझे पीर तो बता दो कौन से फिर। अरे पीर मेरे आला हजरत जैसा होना चाहिए, पीर मेरे गौसे आजम जैसा होना चाहिए, पीर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जैसा होना चाहिए, पीर साबिर पाक कजरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा होना चाहिए, पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसा होना चाहिए, पीर मेरे ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, पीर मेरे जो है मुफ्ती आजम हिंद जैसा होना चाहिए, पीर हामिद रजा मुस्तफा जैसा होना चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पे आया करो, थोड़ा बयान किया करो, ये क्यों जा रहे हैं फिर तुम्हारे? अरे यार कोई आए जाए, मुझे इससे क्या लेना देना? अल्लाह ताला ने अकल दी है, 2 रोटी खाते हो, 2 गिलास पानी पीते हो, तो आपको भी मालूम होगा ना कि कौन रसूलुल्लाह की बुराई कर रहा है, कौन रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो रसूलुल्लाह की तारीफ करेंगे वो हक पर होंगे, जो रसूलुल्लाह की बुराई करेंगे वो दोज़ख में जाएंगे। अरे तुम जिसको कह रहे हो उसी अरे जनाब, अरे जनाब, तो समझाओ नहीं। अरे सुनिए जनाब, इनको रोको तो सही कम से कम। अकल से यतीम लग रहे हो आप मुझे। नहीं, जब हम अपने घर में नहीं समझा, अकल से यतीम लग रहे हो आप मुझे। अपने भाई को नहीं समझा सकते, दूसरे को कैसे? अकल से यतीम लग रहे हो आप मुझे। मैं किसी के घर घर जाके थोड़ी बताऊंगा, उलमा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको समझा रहा हूँ, तुम समझो, तुमको समझा रहा हूँ, तुम तो समझो। तो मैं तो जब ही समझ पाऊंगा ना, मैं देखूं सही मेरे बड़े बड़े कहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े नहीं मान पा रहे तो मैं क्या मानूंगा, ये बताओ। तो मत मानो, हर एक को अपनी कब्र में सोना है ना। हाँ तो बस, तो फिर क्या बात है? हाँ तो जाओ, जहाँ दिल चाह रिया तुम्हारा जाओ। कोई बात नहीं, चले जाएंगे। हाँ, जब अल्लाह ने कब्र बनाई है तो फिर तो जाना ही है उसमें, तो सबको सोना है, क्या बात है। बहरहाल फैसला आपको करना है, ठीक है भाईजान। वो तो फैसला है भाई। मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया कि कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हद तक अपने बीवी बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तुम कह रहे हो मैं अपने बाप के बराबर मोहब्बत करता हूँ रसूलुल्लाह से। अरे मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। अरे छोटी और बड़ी यहाँ बैसो मुबाइसे का वो मत रखो, ठीक है। छोटी चीज बताओ और बड़ी चीज बताओ, समझे। जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैंने बता दिया कि देवबंद के 4 काबिर पक्के काफिर, समझे। जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। अच्छा जी जनाब। कौन से उलमा ने लिखा है कि हमारे नबी का दर्जा गधे और जानवर का दिया गया? कौन सी किताब में है? अरे जनाब, किसी में मैंने अभी आपको बताया था कि किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम, लिखने वाले का नाम है मौलवी इस्माइल दहलवी। अच्छा जी जनाब, समझे। सिरात मुस्तकीम में लिखा है? हाँ, सिरात मुस्तकीम में लिखा है, मगर तुम मानोगे नहीं शायद। अच्छा, नहीं समझे जनाब। मानेंगे क्यों नहीं, पढ़ेंगे भी तो मानेंगे। हाँ तो आप इसको पढ़िए, अगर ऐसा हो तो ठीक है, ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो आप बीच चौराहे पे खड़ा करके मेरा सर कलम कर दीजिए। अच्छा, तो ताबीज करने की तुम मना कर रहे थे, मैं तुम्हें दिखाऊं फिर तुम मानोगे, कलम करोगे? फिर वही बात, मैंने कहा ना कि मैं चोरों के साथ नहीं हूँ। नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया नहीं, आपके ही बड़े, ये दुनिया है, दुनिया। फिर क्या करोगे? अरे यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम लोग ना अकल से यतीम हो, अकल से पैदल हो। अकल तुम्हारी मर गई है, अकल तुम्हारी शैतान ने खरीद ली है। अच्छा, अब जिंदा कैसे हुई है? जाओ जहन्नम में थानवी के साथ, सब जिंदा हो जाएगी। अच्छा, आपने फैसला भी कर दिया? वाह 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 वाह। जाओ ना, थानवी के साथ हो तो थानवी के साथ तो रहोगे। तुम कह रहे हो मैं अपने बाप के बराबर मोहब्बत करता हूँ रसूलुल्लाह से, तो बाप को तो लोग गाली भी बक देते हैं, बाप को तो लोग मार भी देते हैं, बाप को तो लोग ऊंची आवाज में ही बोल देते हैं, बाप को तो लोग झड़प भी देते हैं। आपको किसने दर्जा दे दिया कि हम फैसला कर सकते हैं ये बंदा जहन्नम में जाएगा? तुम्हारी बातों से लग रहा है ना। अच्छा, बातों से लग गया। तुम्हारे मुंह से अभी तक मैंने कोई ऐसी बात सुनी जो रसूलुल्लाह की शान बयान करती हो? अच्छा, बताओ। जल्दी आपने फैसला कर दिया कि ये बंदा जहन्नम में ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जहन्नम में। मैं तो ये कह रहा हूँ जाओ जहन्नम में। अरे भाई, उनके साथ रहोगे तो जाओगे ना, तौबा कर लोगे तो नहीं जाओगे। बच जाओगे। अल्लाह को ना पसंद आई ये बात तुम्हें जहन्नम में लिया तो तुम बच जाओगे। अरे वो तो मेरे साथ मामला है ना। नहीं, तुम्हारे साथ वाले तो आना चाहिए पेश। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, मैं तो अपने नबी की वफादारी में जो तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा रब फरमाता है कि मेरे लिए किसी से मोहब्बत करो,
मेरे लिए किसी को दो, मेरे लिए किसी को ना दो, मेरे लिए किसी से दुश्मनी रखो, समझे? अच्छा हाँ, तो हम अल्लाह की रजा के लिए हम रसूलुल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए मोमिनों को कुछ देते हैं और अल्लाह की रजा के लिए किसी दुश्मनाने रसूल को नहीं भी देते हैं। नहीं, ये 72 दुश्मन कैसे हैं अल्लाह के नबी के? देखो, अभी मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला जब दिल लेता है तो अकल छीन लेता है, उसे कितना ही समझाओ उसकी अकल में नहीं फंसता। तो आप सुनो, फंस जाए अकल में, सुनो, देख रहा हूँ मैं। देखो सुनो, तुमने कहा कि तुम्हारे बाप की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए बराबर है, कैसे मोमिन हो सकते हो तुम? किसी और ने तो नहीं कहा, मेरे छोटे भाई ने नहीं, तो तुम कैसे मोमिन हो सकते हो मुझे बताओ? ओनली मैंने कहा है। अरे ओनली तुमने कहा है तो तुम कैसे मोमिन हो सकते हो? चलो मैं मोमिन नहीं हूँ, मान लो ये बात। चलो तो मैंने तुम्हें ही तो कहा कि तुम अपना खराब अकीदा, बदबूदार अकीदा रख के जाओ जानने में, थानवी के साथ जाना चाहते हो तो जाओ, 72 और अगर बचना चाहते हो तो बच लो। नहीं, 72 फिर नबी से मोहब्बत ही नहीं करती, ये बताओ मुझे सब। ये तो नबी से जाके पूछो ना। नबी से कैसे पूछ लूंगा? हाँ, नबी से जाके पूछो। तुमने जाके पूछा था क्या? नबी से जाके पूछो, मैंने तो नबी की हदीस पढ़ी है। मैंने तो नबी की हदीस पढ़ी है। कल मैं कोई हदीस लिख दूं राइटर बन के और उसमें नाम, अरे यार मैंने कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला जब दिल लेता है तो अकल छीन लेता है, तो फिर जब अकल ही छीन जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो जिनके तुम शैतानों की वकालत कर रहे हो, तुम शैतानों की वकालत कर रहे हो, मैं अपने नबी की वकालत कर रहा हूँ। ना मैं तो भाई किसी की वकालत। ये नाना तो मर गए होंगे तुम्हारे कब के यार, और वो भी बरेलवी होंगे शायद। मेरे नाना तो तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अनफी बरेलवी होंगे, ना हो तो बता दो। वो सब हिंदू थे। वाह वाह वाह, यानी वो कुफ्र पर मरे, शिर्क पर मरे। यहाँ हिंदुस्तान में रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे बाप दादा सब हिंदू थे, वो सब कुफ्र पर मरे ना? और क्या हिंदू थे? चलो हक पे बोलो, तुम्हारे नहीं थे? अच्छा, तुम्हारे नाना का नाम क्या था? नहीं, तुम्हारे नहीं थे। नहीं, तुम्हारे नाना का नाम क्या था? हक बात देखो, तुम्हारे नाना का नाम क्या था? तू मुसलमान है, तेरे बाप दादा हिंदू थे, तू कहाँ से मुसलमान आ गया है? तूने कब? अरे क्यों, जब मैंने इसमें कोई इधर खैर चल, तूने बता दिया कि तू काफिरों की औलाद है, ऐसे करके मान, तूने कहा, मैंने नहीं कहा, है ना? तो फिर वही जिसने फोन किया उनसे कहलवा दूं हिंदू से। अरे भाई, तो हो सकता है हिंदू हो, तुम ईमान लाए हो। नहीं, इनसे और वो भी ऐसी जगह चले गए कि जहाँ जो है वो दुश्मनाने रसूल रहते हैं, वो भी ऐसी जगह चले गए। तुम जितने भी सुन्नी हिंदुस्तान में हैं सब हिंदू थे। जब मेरे ख्वाजा के नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाया तो मुसलमान हो गए ना, तो हम तो मुसलमान की औलाद है ना। अरे तुम हिंदू की औलाद हो गए, हम तो मुसलमान की औलाद है ना। तुम हिंदू की औलाद से, तुम हिंदू से पैदा हुए होगे। खैर चलो, मुसलमानों इन्होंने फैसला खुद ही कर दिया, ये हिंदू से पैदा है। इनके बाप दादा परदाना नाना परनाना ये सब के सब हिंदू थे, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, फूड बहरहाल इंसानों को मारोगे, बहरहाल और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अरे भाई, फूड तुम जैसे शैतान डालते हैं। हाँ, अच्छा तो एक काम करो, फिर मैं कहता हूँ तुम इस चीज को मानो 1 साल, और तुम कहो उस चीज को मैं मानूंगा 1 साल, फिर देखते हैं ट्रांसलेट क्या हुआ। बोलो क्या ट्रांसलेट होगा? क्या ट्रांसलेट होगा? मैंने पहले ही कहा, अरे ये अबू जहल वाली बातें छोड़ो, ठीक है? तुम्हारे जैसे चिल्ले के पिल्ले कितने आते हैं, कितने जाते हैं, समझे? ना चिल्ले का पिल्ला, ना चिल्ले का पिल्ले। तुम नहीं, तुम हो लावारिस हो, तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई दीन धर्म नहीं है। तो लावारिस में करूंगा ना तुम्हें तो होना चाहोगे? देखो मुसलमानों, इससे मैंने कहा था कि तुम्हारे बाप दादा को कोई बुरा कहे तो क्या करोगे, तो इन्होंने कहा गले से लगाएंगे। वाह क्या अंदाज है, गले से लगाने कह रहे यार, अंदाज ही है। तुम बेवकूफ इंसान हो यार, तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत ही नहीं है। क्यों ना? तुमने देखा नहीं, मोहब्बत वाला ऐसा करता ही नहीं है, मोहब्बत वाला तड़ातड़ रखता है, समझे? और जैसी हैसियत रहती है, जैसी कुव्वत रहती है, जैसी पावर रहती है, वैसा करता है, समझे? अगर बेचारा कमजोर होता है, कोई बड़ा गाली बकता है तो कहता है भाई क्यों गाली बक रहा है, समझे? उससे जवाब तलब करता है, क्यों तू ऐसा बोल रहा है? तुम्हें अपने बाप से ही मोहब्बत नहीं है, तो जब तुम अपने बाप के ना हुए तो हमारे रसूल पाक के क्या होगे यार? फिर मुसलमानों के क्या होगे? जो अपने बाप का ना हो वो रसूल पाक का क्या होगा? क्या बात कही, जज्बे के साथ बात कही, जलवे के साथ बात कही जी। तो फिर मातम वगैरह बंद कराओ ना, तुम क्यों नहीं कराते हो? ये तुम्हारे बाप दादा भतेरा मातम कर रहा है।
ये तुम्हारी लाइन से सिर्फ है सब, तुम कहते तो। बहरहाल जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी अकल मार दी है, तुम्हारी सीनों पर जो है ना मोहर कर दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, समझे। तुम अल्लाह अभी भी वक्त है, मरने से पहले तौबा कर लो, देवबंदी वहाबी का रास्ता छोड़ दो, किसी न किसी एक जमात के साथ तुम जरूर हो, चाहे वो तुम कादियानी के साथ हो, चाहे तुम मिर्जा हरामी के साथ हो, जो मिर्जा अली है ना वो कमीना बदबख्त पाकिस्तान वाला सुअर, चाहे तुम तारिक जलील हरामी के साथ हो, समझे। हाँ, वाह वाह, मजा आ रहा है ना सुनते हुए। अरे बिल्कुल आएगा कि तुम्हें इन देव के बंदरों से किसी से भी मोहब्बत नहीं है। नहीं, अब वही तो तुम्हें शायद अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। जब तुम एक को सच बता सकते हो और सबको गलत बता सकते हो, मजा तो आएगा। अरे ये रसूल पाक की हदीस है पागल आदमी, ये रसूल पाक की हदीस है। व्हाट्सअप करो मेरे को, जाहिल आदमी। क्यों? ये रसूल पाक की हदीस है। कुछ व्हाट्सअप तो करो मुझे ऐसा, मैं भी तो देखूं कौन सी हदीस है। तौबा कर लेगा? मैं अभी तुझे व्हाट्सअप करता हूँ, तौबा कर लेगा? तौबा करने लायक हो तौबा करूंगा। नहीं, मैं ये हदीस तुझे अभी सेंड करता हूँ, वाकई तू तौबा कर लेगा? बता। तो वो तो मैं देखूंगा ना, जब मेरे को चॉइस बाई चॉइस, जब बाई चॉइस, तेरे चॉइस पे दीन चलता है क्या? अरे जा जहन्नम में, मैं तो पहले कह रहा हूँ जा। हिंदुस्तान में बाई चॉइस मुस्लिम है, याद रखो इस बात को। पाकिस्तान छोड़ा था। अबे यार, जहाँ तेरा दिल चाहे वहाँ जा, समझा। मैंने पहले ही कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अल्लाह ताला जब अकल ही छीन लेता है तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। अकल होगी तो कुछ समझेगा ना, जब अकल ही नहीं होगी तो क्या समझेगा। अच्छा हाँ चल ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और तेरे इसी नंबर के साथ तेरी ऑडियो आएगी यूट्यूब पर, ठीक है। अरे मैं तुम्हारी बात होगी, तुम्हारी टेंशन क्यों ले रही हूँ। हाँ, अपने जमात के तू किसी भी देवबंदर से बात करा, तू वहाबी हो, अहले हदीस है, कादियानी है, मिर्जाई है, कौन है, क्या है, बात कराओ अपने किसी बुजुर्ग, अपनी जमात के किसी बड़े आलिम से बात कराओ मेरी। इतना सबर रखो, बेसबर मत बनो। जिंदगी में बेसबर बनने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, सब्र करोगे सब कुछ मिलेगा। ऐसा है, ये सबर किसी काम नहीं आएगा तुम्हारा। अरे हमारे तो सबर ही काम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ये। अरे हमारे हिसाब से सबर बहुत, ये कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, और वो भी सच्ची पक्की, दिखावे की नहीं, किसी की चोरी, वो भी सच्ची पक्की मोहब्बत है। तुम देख लो, अभी किसी की ऑडियो क्लिप चोरी कर रहे हो, तुम सबसे बड़े चोर हो। कहाँ तेरी ऑडियो ये पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है, और तेरे पूरे आगरा में, पूरे अलीगढ़ में, पूरे इलाके में गूंजेगी, ये आवाज करेगी। मेरे पास भी ये बताएगी ऑडियो चल रही है। तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।